ویلکم بیک ویورز. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاسٹر فرید اینتھنی صاحب سے, جو فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں سیو آل دی نیشنز منسٹری کے. اور پاسٹر جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, تو اس منسٹری کے بارے میں اور اس کی خدمت کے تعلق سے ضرور بتائیے گا. سر میں 2000 یہ کہہ سکتا ہوں کہ اندر میں نے ایک رویا دیکھی کہ ایک تالاب ہے, ٹھیک ہے, اور اس تالاب کے اندر سوئمنگ پول کے اندر میں نہا رہا ہوں. اور میں جب نہا رہا تھا تو میں جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو کہہ رہا ہوں, یار آپ بھی سب آ جاؤ اس میں, اگر آپ اس میں نہانا چاہو تو یو وش, اگر آپ لائک کرو آ جاؤ, بہت یعنی کہ مزہ آ رہا ہے, بڑا فریش پانی ہے اس میں. سو کچھ مہینے گزرنے کے بعد میں دعا کرتا رہا, میں نے خداوند مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب کیا تھا. اور بہت سارے لوگ اس میں آ گئے, بہت سارے لوگ جن کو میں نہیں جانتا, ٹھیک ہے. تو ایسا ہوا کہ وہ جو لوگ آئے ہیں میرے ساتھ, انہوں نے اس میں کافی ٹائم سپینڈ کیا. کچھ ماہ کے بعد مجھے اس رویا کے بارے میں خدا نے واضح ڈائریکشن دی کہ میں نہ صرف تو بچے گا بلکہ میں بتھیروں کو, ٹھیک ہے, بچاؤں گا تیرے ذریعے سے. سو اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں. سو میں نے سٹارٹ لیا تیمرگرہ سے, اور پھر میں ان علاقوں میں خدمت کافی دیر میں نے کی. پھر خدا مجھے وسعت دیتا رہا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا جو خدا کے ساتھ تھا نا, ہر وقت جو رشتہ تھا اس میں میں ایک بات ہمیشہ کہتا تھا, خداوند اگر تو مجھے گرو کرے گا تو میں دین دوسروں کو جو ہے نا میں گرو کر سکوں گا, ٹھیک ہے. اور پھر خدا کے شکر گزار ہے کہ اس منسٹری نے سندھ کے اندر, سلاب کے اندر بھی بہت سارے علاقوں میں پانی پرووائڈ کیا ہے, اور فوڈ کا اور میڈیسن کا کام کیا ہے. اور سب سے بڑی بات جو کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے کئی ایسے پروجیکٹ کیے ہیں جو کہ کئی میل دور سے ہمیں میٹھا پانی ملا ہے, اور ہم اس پانی کو جو ہے پائپ لائن کے ذریعے ان لوگوں تک لے کر آئے جن تک ہم جا کر انجیل کی بشارت جو ہے وہ پہنچاتے ہیں یا کرتے ہیں ان میں. سو شکر گزار ہے کہ خدا کا کہ وہ لوگ جو کہ بالکل اننوئنگ پرسن ہے اباؤٹ جیزس کرائسٹ, ان کو کوئی علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہر گھر میں ان کے جو ہے, آپ دیکھیں کبھی جائیں وہاں آپ کو مندر نظر آئیں گے, آپ کو مورتیاں نظر آئیں گی, اور وہ لوگ بہت زیادہ جادوگری میں پھنسے ہوئے لوگ. خدا کا شکر گزار ہیں کہ خدا نے مجھے بلیس کیا ایک پودے کی طرح. پودا جب بڑھتا ہے تو اس کے چھاؤں میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں, اس کی آکسیجن دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, اور اس کا پھل بھی کئی لوگ کھاتے ہیں. تو یہ منسٹری ایک ایسی منسٹری ہے کہ جس کو خدا نے گرو کیا, ٹھیک ہے, پھلدار بنایا. اور آج خدا کا شکر ہے کہ میں ایسے علاقوں میں ریچ کر رہا ہوں جہاں لوگوں کی ضرورت ہے خدا کا کلام, اور مختلف طریقوں سے ہم ان کو یسوع مسیح کے پاس لا رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے خدا کا. تو بس اب جب آپ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں, اور خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں پر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں, تو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیسے ان پر قابو پاتے ہیں؟ میں جو فرسٹ آف آل وہاں گیا 2014 کے اندر, ہم گئے سالے پٹ کے علاقے میں. وہ ریگستان ہے, تھر کا علاقہ ہے, سارا ڈیزرٹ ہے. تو بھائی صاحب بلیو کیجئے, کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. صبح ہم پہنچے ہیں, جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو ناشتے کا انتظام ان کی طرف سے کیا گیا. میں اپنی گاڑی سے نکلا ہوں, ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا وہاں کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے سامنے ناشتہ رکھا گیا, ہمیں جو چپاتیاں دی گئیں, جو انڈے دیے گئے, وہ ڈسٹ فل تھے, یعنی ان میں ریت کے ذرے تھے. میں نے اپنی ٹیم کے لوگوں سے کہا, میں نے جب 2-3 نوالے لیے, میں کہا بھی جوانو ہے تو آزمائش ہے, ٹھیک ہے, مگر آج اگر آپ اس آزمائش پر غالب آ گئے تو سمجھ لیں ہماری خدمت جو ہے نا وہ اس علاقے میں بڑھ جائے گی, وسعت پا جائے گی, اور ہم اس بڑی جو ہے نا پریشانی پر غالب آ جائیں گے. خداوند کی شکر گزاری, ہم نے جی بھر کر کھانا کھایا, رات کو سوئے, ایک نیا ایکسپیرینس ہوا. رات کو اکثر جو ہے گرمیوں میں رات کو آندھی کا سما ہوتا ہے وہاں,
डेजर्ट एरिया के अंदर। तो सुबह जो है ना कम से कम इतनी रेत आपके ऊपर जो है ना सुबह जो है ना वो चढ़ी होगी, अगर हम सो जाते हैं वहाँ। छोटी छोटी झोंपड़ियाँ हैं, तो हमने उनको तकलीफ देना बर्दाश्त नहीं किया या पसंद नहीं किया, हम बाहर सो गए। और जब हम सुबह उठे तो पादी साहब बहुत अजीब समा था, सर में रेत, हमारे ऊपर बस कपड़ों के रेत। और हमने फिर भी खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने कहा खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे इस काम के लिए मखसूस किया है, बुलाया है, अलहदा किया है। मैं हाज़िर हूँ खुदा, और मैं ऐसे सर्कमस्टांसेस को, ऐसे मतलब हालात को फेस करने के लिए मैं मसलसल यहाँ आता रहूँगा। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम हर माह वहाँ जाते हैं और हर माह नए इलाकों को रीच करते हैं, अंजील की बिशारत करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमत कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर सब खिदमत गुजारी का काम आसान नहीं है, इसमें मुश्किलात हैं, इसमें तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। कई दफ़ा लोग जो खिदमत में हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, चाहे यूथ लीडर्स हैं, चाहे संडे स्कूल टीचर्स हैं, जब मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में तो बड़े घबरा जाते हैं और उस खिदमत के काम से फिर कतराना जी बिल्कुल ऐसे हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं? मैं एक वाकया छोटा सा बयान करूंगा। जून जुलाई का महीना था, तो टेम्परेचर जो था 50+ हो जाता है वहाँ। एक नौजवान मेरे साथ गया टीम वर्क में, तो उस दिन जो है गर्मी की शिद्दत थी। हम अपनी गाड़ी में एसी चला के बैठे रहे 4-5 घंटे, मगर हालात ये थे, बिल्कुल ऐसे हो रहा था जैसे ना अभी अटैक होने वाला है। तो और बहुत यानी कि गर्मी की हिद्दत थी उस वक़्त। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने उस रोज़ा में संभाला। वो जवान वापसी में मुझे कहता, सर मैं तो दोबारा इस इलाके में नहीं आऊँगा। मैंने कहा बेटा क्यों, क्या आप इस खिदमत के लिए बुलाए गए हो? मैंने 2 बातें उससे कही, या नहीं सर मैं करना तो चाहता हूँ मगर ना गर्मी बहुत है। मैं कहा भाई बात सुनो, यीशु मसीह ने लिखा है वो गलियों में, कस्बों में, वो गांव बस्ती बस्ती, शहर ब शहर वो जाता रहा और काम करता रहा। मैंने उससे कहा कि ब्रदर वी आर नॉट स्पेशल, नॉट सुपीरियर, यानी यीशु मसीह से ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, उससे ज़्यादा मोतबर नहीं है, उससे ज़्यादा हम जो है वो मतलब कि आम नहीं है। वो जो गली बाज़ारों, शहरों में, कस्बों में जा सकता है, ठीक है, हम उसके बुलाए हुए हैं, उसके यानी कि नुमाइंदे हैं, एलची है। हमारा भी यही काम है, अगर हमें उसने बुलाया तो हम ज़रूर जाएंगे, हम ये ज़रूर करेंगे। और खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो नौजवान गुज़रे साल में भी 2 दफ़ा उन इलाकों में वो मेरे साथ गया है और खुदा का काम उसने किया है। सो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है, मैं एक वर्स जो कोट करूँगा आपके सामने, खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालिए ज़रा, यूसाया नबी का सहीफ़ा, और उसके हम जब 41वें बाब की 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ डेजर्ट में भी हूँ, मैं तेरे साथ सिटी के अंदर भी हूँ, मैं तेरे साथ ब्रिकनल एरिया के अंदर भी हूँ, यानी जहाँ भी तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। तो ब्रदर जी जब वो हमारे साथ है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी बात से खौफजदा होना चाहिए। और फिर आगे लिखा है हरासा ना हो, यानी वहाँ मुझे बताया गया कि सर वहाँ तो कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, वो लोग उठा लेते हैं, वो लोग आपकी गाड़ी छीन लेंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने इस आयत को अपने सामने रखा, मैं आगे लिखा है हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं कोई बुत नहीं हूँ, ठीक है, मैं हर जगह तेरे साथ हूँ, ठीक है, मेरी प्रेजेंस जो है वो तुझे बचाएगी। प्रेज गॉड। मेरी प्रेजेंस तुझे बचाएगी, मेरी मौजूदगी जब तेरे साथ होगी तो वो तुझे बचाएगी। ये मैं अपने देखने वालों को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि अगर आप खिदमत में हैं तो पहली बात आपको डरने की जरूरत नहीं है।
हरासा होने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यानी मैं तुझे गलबा बख्शूंगा उन चीजों पे जो तेरे साथ, तेरी बॉडी के साथ, तेरी खिदमत के साथ, ठीक है, जो तेरे साथ अलाका नहीं रखती हैं या मैच नहीं करती हैं, मैं तुझे उन पे क्या करूंगा, जोर बख्शूंगा, कुव्वत दूंगा। और फिर लिखा है मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। जबरदस्त, वाह, मैं यकीनन, यानी इसमें यकीन दहानी दिला दी गई है, श्योरिटी है एक तरह से। श्योरिटी दे दी गई है जहां भी तू जाए, ठीक है। सहरा, मैं इस बात के साथ एक और हवाला कोट करूंगा। लिखा है कि जब तू नदियों पर चलेगा, समंदरों पर चलेगा, वो तुझे डुबोएंगे नहीं, आग पर तू चलेगा वो तुझे जलाएगी नहीं। आमीन। हालेलुया। ये है हमारा खुदा जो ये कह रहा है कि मैं यकीनन श्योरिटी देता हूं कि मैं तेरी मदद करूंगा, और इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूं। और आगे फिर लिखा है और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी ये कह सकता हूं कि जब ये आयत मेरे सामने आई तो पादी साहब यकीन करें, खिदमत में तो वसअत आई, मेरे सोर्सेस में भी वसअत आई। ना इज्जत की कमी रही, ना शोहरत की कमी रही, ना दौलत की कमी रही। तो मैं अपने देखने वालों को ये इनकरेज करना चाहता हूं, इंस्पायर करना चाहता हूं कि अगर आप दुरुस्त अपना रिश्ता अपने खुदा के साथ रखते हैं तो फिर आपका कोई मुखालिफ नहीं है, फिर आपके सामने कोई चैलेंजेस नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे, ना सिर्फ आप आगे बढ़ेंगे, आप दूसरों को लेकर भी आगे बढ़ेंगे, और ना सिर्फ आप दूसरों को लेकर आगे बढ़ेंगे बल्कि आप बथेरों को उसके गला में शामिल कर सकेंगे। हालेलुया। पर मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर इसके बारे में भी, इस पर भी रोशनी डालें कि जब खुदा हमें ब्लेस करता है, खुदा हमें बरकत देता है, तो उन बरकतों में, उस खिदमत में दूसरों को इन्वॉल्व करना, दूसरों को शामिल करना, ये किस हद तक मुफीद होता है? सर, मैं कह सकता हूं कि अगर कोई बाइबल पढ़ने वाला है तो उसे लूका की अंजील को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो पास्टर साहब, हम लूका की अंजील को जब पढ़ते हैं सो वहाँ 5वें बाब में एक खूबसूरत वाक्य है। जैसा आपका सवाल है कि जी अगर आपको खुदा ने ब्लेस किया है तो देन आपका बिहेव कैसा होगा या आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि रसूल जो हैं वो रात भर वो जाल डालते रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला। जब उन्हें कुछ मिला, मुख्तसर तौर पे बताना चाहूँगा, सारे वाक्य सारे लोग जानते हैं, वाकिफ़ हैं। एक चीज़ जिसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया इस वाक्य में से, वो लिखा है कि जब उनके कश्तियाँ भर गईं, ठीक है, या जाल फुल हो गए, तो उन्होंने दूसरों को भी बुलाया। उन्होंने कहा मियाँ जो साथ में थे, जिनके पास सेम सिचुएशन थी, उनके पास कोई मछली नहीं है, उन्होंने उनको कॉल की मियाँ आप भी हमारे साथ शरीक हो जाएं। ठीक है, असी जड़ा लफ्ज़ है ना शरीक वाला, ये असी बड़े गलत टर्म्स यूज़ करने हैं। हम लोग इसको वो शरीका जी ये यानी ये नहीं, बाइबल में जो है ना इसका मतलब है उन सारी बरक़ात में दूसरों को शरीक करना जो आपके पास है। तो लिखा है कि उन्होंने उसमें उनको शामिल किया। पर सर मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर हमारे देखने वालों को कोई एक पैगाम जो देना चाहें। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को जो देखने वाले हैं उनको एक पैगाम देना चाह रहा हूं, और वो ये है कि अगर आप शादमानी में और खुदा की बरकतों में वुसअत पाना चाहते हैं तो नौजवानों के लिए मैसेज है, आप अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा यीशु मसीह को दें। बेहतरीन जो आपके पास है वो यीशु मसीह को दें। जो आपके पास खुदा ने दिया हुआ है उसमें दूसरों को भी शरीक करें। इस तरह आपकी खिदमत भी बढ़ेगी, आपकी ब्लेसिंग्स में भी बरकत आएगी, और आप दूसरों के लिए भी इंस्पायरेशन पर्सनैलिटी बन जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। बहुत शुक्रिया पास साहब। अजीज़ भाई और बहनों, ये ज़रूर है कि हम अपनी नेमतों में, अपनी बरक़ात में दूसरों को शामिल करें। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उन सारी नेमतों के लिए जो तू हर रोज़ हमें अता करता है, और बख्श दे खुदा कि हम हमेशा अपनी बरकतों और नेमतों में अपने दीगर भाइयों और बहनों को भी
شامل کرتے رہیں. میری دعا ہے ہوشنا ٹی وی کی ساری ٹیم کو برکت دے, اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے سلامتی اور برکت چاہتے ہیں. پاسٹر فرید اینتھنی کے لیے اور ان کی ساری منسٹری کے لیے شکر گزاری کے ساتھ اور زیادہ برکت چاہتے ہیں, تاکہ تیرے بندہ کی خدمت اور زیادہ وسعت پائے. اپنے ہاتھ کو بڑھا, اور آج کی اس ایپیسوڈ ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو, یسوع مسیح کے نام سے آمین. عزیز بھائی اور بہنوں, اپنے میزبان پاسٹر بشارت کو اجازت دیجیے گا. نئے مہمان اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. کیپ واچنگ ہوشنا ٹی وی.